آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے بعد جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی طرز زندگی یکسر بدل گئی ہے۔ دہشت گردی کے متاثرہ خاندانوں کو تیزی اور خلوص کے ساتھ انصاف فراہم کیا جا رہا ہے، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سرن کوٹ اور پونچھ میں حالیہ سیلاب سے ہوئے نقصانات کا لیا جائزہ، اور آر بی آئی نے موجودہ مالی سال میں جی ڈی پی کی ترقی 6.7% رکھنے کا لگایا تخمینہ۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے 7 سال بعد جموں کشمیر اور لداخ میں نمایاں ترقی ہوئی ہے، جو مرکزی سرکار کا عزم بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ دونوں مرکزی زیر انتظام علاقوں میں بنیادی ڈھانچے میں توسیع ہوئی ہے، جبکہ تعلیم، صحت، کاروبار اور کھیلوں کے شعبے میں نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین، پسماندہ طبقات اور بنیادی آئینی حقوق سے محروم افراد کو بااختیار بنایا گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس دن کی اس لیے اہمیت ہے کیونکہ ملک امسال ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں یوم پیدائش منا رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کی خدمات آج بھی نئی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کا ویژن 5 اگست 2019 کو تاریخی طور پر عملی شکل اختیار کر گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں ایک تقریب کے دوران دہشت گردی سے متاثرہ 37 افراد کے نزدیکی رشتہ داروں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ تقرر نامے صرف ملازمت کے کاغذات نہیں بلکہ دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ انصاف، ان کی قربانیوں کے اعتراف اور انہیں باعزت روزگار فراہم کرنے کی علامت ہے۔ یہ کئی ایسے پریوار تھے جو آتنکوادی ہنسا میں شکار ہوئے، اور ان کے پریجن لمبے سمے سے راہ دیکھ رہے تھے کہ جو قانون یہاں کا ہے اس میں ان کو سرکاری نوکری تھی، لیکن کافی لمبا سمے لگا۔ کوشش ہو رہی کہ ہر ایسے ویکتی کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹیرر وکٹم کے سبھی فیملیز کے نکٹستھ پریجنوں کو سرکاری نوکری دی۔ اسی کرم میں آج کافی لوگوں کو نوکری دی گئی، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک سمان پورن جینے کا اوسر شاسن نے دیا ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد دہشت گردی کے ڈھانچے کو بڑی حد تک کمزور کیا گیا، امن و قانون کی صورتحال مضبوط ہوئی اور متاثرہ خاندانوں کو مساوی حقوق اور نئے مواقع فراہم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے تمام ذمہ داروں اور ان کے معاونین کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے۔ تقریب کے دوران SRO 43 اور بحالی امدادی اسکیم کے تحت 32 دیگر مستحقین کو بھی تقرری نامے دیے گئے۔ پارلیمنٹ میں آج دفعہ 370 کی منسوخی کی 7ویں برسی پر بھی بحث ہوئی۔ بی جے پی جموں کشمیر صدر اور راجیہ سبھا رکن ستپال شرما نے اسے جموں کشمیر کے مکمل انضمام اور ترقی کی جانب تاریخی قدم قرار دیا۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ ششانک منی نے اپوزیشن پر پارلیمنٹ کی کارروائی میں رخنہ ڈالنے کا الزام عائد کیا، جبکہ دنیش شرما نے کہا کہ اس فیصلے سے قومی یکجہتی مضبوط ہوئی اور عوامی مرکزیت پر مبنی طرز حکمرانی کو فروغ ملا۔ ادھر بی جے پی کی طرف سے آج سری نگر میں دفعہ 370 کی تنسیق کی 7ویں برسی منائی گئی۔ اس موقع پر منعقدہ ایک پروگرام میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنان کی ایک خاص تعداد موجود تھی۔ بعد میں بی جے پی آفس جواہر نگر سے ایک بائک ریلی بھی نکالی گئی۔ دریاسنا نیشنل کانفرنس نے آج نئی دلی، سری نگر اور جموں سمیت یو ٹی کے تمام ضلع صدر دفاتر پر اس دن کے حوالے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ نئی دلی میں پارلیمنٹ کے احاطے میں نیشنل کانفرنس کے ممبران پارلیمان نے انڈیا بلاک کے لیڈران کے ہمراہ احتجاج کیا اور ریاستی درجے سمیت جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر بھی ایک اجلاس منعقد ہوا، جس دوران پارٹی لیڈران نے جمہوری، قانونی اور پرامن طریقے سے اپنے حقوق کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم کیا۔ پی ڈی پی کی طرف سے بھی آج اننت ناگ میں ایک پرامن احتجاج کے دوران جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عہد کیا گیا۔
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सुरनकोट और पुंछ के हालिया सैलाब से मुतासरा कुंभों से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने रिहायशी मकानात और अवामी इमलाक को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने लौरान मंडी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सोगवार कुंभों से ताज़ियत की। उन्होंने मुतासरीन को सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। बाद में वज़ीर आला ने जिला इंतजामिया के साथ एक मीटिंग की और अफसरान को हिदायत दी कि वो नुकसानात का जायजा लेने में सूरत लाएं और फौरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएं और जरूरी खिदमत को बहाल करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के 107वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केवीआईबी को एक अवाम दोस्त इदारे में तब्दील किया जाना चाहिए, जो हुनरमंद कारीगरों को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ रिवायती दस्तकारी को भी फरोग दे सके। उन्होंने कहा कि खादी महज एक चीज ही नहीं बल्कि खुद इन्हिसारी और जम्मू कश्मीर की सकाफत की शनाख्त भी है। महकमा खजाना के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने आज कश्मीर डिवीजन में स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद रेवेन्यू वसूली, कानूनी ज़ाब्तों की तामील और महकमाना कारकर्दगी का जायजा लेना था। मीटिंग में कमिश्नर स्टेट टैक्सेस जम्मू कश्मीर पीके बट, एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस कश्मीर परवेज अहमद रैना के अलावा कई दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। महकमा आर&बी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनिल कुमार ने आज जगती और नगरोटा माइग्रेंट कॉलोनियों का दौरा करने के दौरान वहां माइग्रेंटों की फलाह बहबूद और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने रिहायशी कम्प्लेक्स का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि 82 करोड़ 4 लाख रुपए का जामे मनसूबा तैयार किया गया है, जिस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने नए तामीर शुदा 2 मंजिला कम्युनिटी हॉल का भी मुआयना किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन CBC के जेर एहतमाम आज गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कोकरनाग में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2 रोजा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह SDM कोकरनाग ने किया। इफ्तिताही इजलास के दौरान तलबा, असातिजा और वालिदैन के अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मुकर्ररीन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अगराज व मकासिद बयान करते हुए मुनशियात के आदी अफराद की बाज़ाबातकारी और इलाज मुआवजे पर मुफस्सल रोशनी डाली। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर शाहिद अहमद लोन ने प्रोग्राम के हवाले से बताया। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मनशियात के इस्तेमाल से दूर रहने के बारे में बेदार कराना था और साथ ही साथ लोगों से अपील थी कि वो मनशियात की लानत के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों में हिस्सा लें। इस प्रोग्राम में इंतजामिया, सेहत और समाजी बहबूद के शोबों के नुमाइंदों के साथ साथ वालिदीन और तलबा ने भी शिरकत की। ये प्रोग्राम कल भी जारी रहेगा और इस प्रोग्राम में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से एक खुसूसी फोटो एग्जीबिशन का भी इनेकाद किया गया है। कोकरनाग में ही आज मुनशियात से निजात दिलाने के बारे में जामे आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुनशियात के नासूर के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया। प्रोग्राम का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोकरनाग के इश्तराक से किया था। प्रोग्राम में इंतजामी अफसरों, तिबी माहिरीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, कॉलेज के असातिजा, तलबा और रजाकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के जरिए जम्मू कश्मीर में मुनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम, इलाज और बहाली से मुतल्लिक एक जामे पॉलिसी तैयार की है, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी ने खित्ते को दरपेश अहम समाजी और अवामी सेहत के चैलेंज से निपटने के अपने अज़म का इयादा किया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट इम्तिहान से मुतल्लिक तलबा के एहतजाज पर मुबैना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अपोजिशन के हंगामे के बायस मुतासर रही। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से बयान का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला ने
शोरो गुल के दरमियान वक्फ सवालात की कार्रवाई शुरू करते हुए ऐवान में नज्म जब्त और वक्फ सवालात की अहमियत पर जोर दिया। राज्यसभा में वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने बताया कि मुल्क में 300 ड्राइविंग ट्रेनिंग इदारे कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने सड़क हादसात में सालाना तकरीबन 1,80,000 अमवात पर तशवीश भी जाहिर की। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 को मंजूरी दी है। ये बिल बैंकारी रिकॉर्ड से मुतल्लिक शवाहिद के कानून को जदीद डिजिटल बैंकारी निजाम के मुताबिक बनाने के लिए लाया गया है, जिसके तहत बैंकों के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी अदालत में काबिल कबूल सबूत तस्लीम किया जाएगा। बिल अपोजिशन के हंगामे के दौरान बगैर बहस के मंजूर किया गया। श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते जारी है। अगरचे आज जम्मू से यात्रा के किसी भी काफिले को श्रीनगर आने की इजाजत नहीं दी गई, ताहम जो यात्री पहले ही वादी पहुंच चुके थे वो बालतल के रास्ते गुफा पर हाजिरी दे रहे हैं। इसी दौरान आज मजीद 2,855 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौजूदा माली साल में जीडीपी की तरक्की के 6.7% रहने का तखमीना लगाया है। मरकजी बैंक ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.25% बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मुल्क की माशी तरक्की में मुस्तहकम मांग के सबब भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी माशियत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस माशी साल में अप्रैल ता जून की माही में मुल्क की माइशत की कारकर्दगी तवक्का से बेहतर रही। बुलंदपाया वली कामिल हजरत शेख शरफुद्दीन अल मारूफ शोगाबाब साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाका खानका कदीम पांपोर में सुबह सवेरे से ही खतमातुल मुअज्जमात और दुरूद व अज़कार की मजालिस आरास्ता हुई, जिनमें अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि हजरत ख्वाजा नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के पेश नजर अकीदतमंदों के लिए माकूल इंतजामात किए जाएं। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:46 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:28 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।